Hello students, welcome to the online classes of Human Resource Management. In this video, we are going to discuss about performance appraisal methods. In our previous video, we discussed about the various uh, objectives of the performance appraisal and the definition and meaning of performance appraisal. In this video, we are going to discuss about various methods of performance appraisal. This is Dr. Vineet Mathur, Associate Professor, Institute of Management Studies, SBJSR Jain College, Bikaner. So before starting the discussion about performance appraisal methods, once again let us discuss what is performance appraisal. Performance appraisals are basically assessment method or evaluation method of individuals' performance within organization. And importantly, we must have some kind of well-defined benchmark, or we can say the performance standard against which we are going to evaluate or we are going to assess the performance of employees. And these kind of appraisals are important for the legal purpose, for promotions and transfer purpose, and for confirming the probation period employee to uh, permanent job. And this is a kind of communication between employee and the employer. And performance appraisals are also known as employee rating, performance review, or employee evaluation. So this is about performance appraisal, and now let us start performance appraisal methods. There are four different kind of performance appraisal methods, and these methods are based on different criteria on which we are going to evaluate the performance. The first kind of performance method, appraisal method, is comparative approach, in which we are going to compare performance of one employee with another employee. Then we have the attribute approach, and we have the behavioral approach, and finally we have the result approach. We are going to discuss about all these four method: the comparative approach, the attribute approach, the behavior approach, and the result approach. Let us start with the comparative approach. The comparative approach. As I told you that these four approaches are based on some criteria. Out of four, the comparative approach is based on the comparison. That means individual's performance is compared with some other staff members' performance. Yes, definitely. Performances are compared with the same hierarchy person or similar kind of employee. That means if we are comparing performance of a computer operator, then we are going to compare his or her performance with other computer operator of same department, of same hierarchy level. There are three different kind of comparative approach. The first one is ranking method, second one is paired comparison method, and third one is
forced distribution method. So let us discuss about ranking method. Ranking method. Ranking method is simplest method of परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसमें बहुत सिंपली मैनेजर्स के पास में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज होती है, जितने भी एम्प्लॉइज को उनको असेसमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है. सिंपली वो उन पे 1 2 3 4 ऐसे करके रैंक लगाना स्टार्ट करते हैं, कंसिडरिंग वेरियस क्राइटेरियाज इन देयर माइंड, और यू कैन से जनरलाइज क्राइटेरिया इन देयर माइंड. वो सभी एम्प्लॉइज को 1 2 3 4 और ऐसे करके जितने भी वो एम्प्लॉय हैं इस तरीके से वो उनको रैंकिंग दे देते हैं. The biggest disadvantage of this approach is that there is no quantification or there is no identification of the difference between first and second or any third or fourth. No one can compare कि उन दोनों में क्या डिफरेंस था, कि उनकी रैंकिंग जो है किसी को थर्ड मिली, किसी को फोर्थ मिली, या किसी को फर्स्ट और सेकंड मिली. तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस रहा, उसका कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और कोई सिग्निफिकेंट मेजरमेंट हम नहीं दे पाते हैं रैंकिंग मेथड के अंदर. जस्ट लिस्ट ली और उसके ऊपर मैनेजर्स जो हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से रैंकिंग दे देते हैं. दैट इज रैंकिंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. The next is paired comparison method. जैसा इसका नाम है the paired comparison, that means इसमें every individual की परफॉर्मेंस को every other individual की परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम हायरार्की लेवल के हमारे पास में 5-6 एम्प्लॉय हैं, तो हम किसी भी एक ट्रेट को पहले सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल जो अभी स्क्रीन पे है, क्वालिटी ऑफ वर्क, इसमें सपोज हमने राम की परफॉर्मेंस को पहले सीता से कंपेयर किया, फिर मोहन से, फिर सोहन से और फिर अमित से. तो इसी तरीके से सीता की परफॉर्मेंस सबसे कंपेयर होगी, मोहन की परफॉर्मेंस सबसे कंपेयर होगी, सोहन और अमित की परफॉर्मेंस भी एवरी इंडिविजुअल से कंपेयर होगी. दैट मीन्स दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बट इसके अंदर एवरी इंडिविजुअल ट्रेट के लिए हर पर्सन की परफॉर्मेंस रिमेनिंग जो दूसरे उसके इक्वल हायरार्की के जो भी एम्प्लॉय हैं उनसे परफॉर्मेंस कंपेयर होगी. सो एडवांटेज हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस दूसरे पर्सन की परफॉर्मेंस से कंपेयर हो रही है और एवरी ट्रेट पे हो रही है. एंड डिसएडवांटेज इज कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. इसमें हर ट्रेट के लिए, हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको एवरी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर करना पड़ेगा. दिस इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. द नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. Next method is forced distribution method. In this method, first we categorize different categories of performance like excellent, good, satisfactory or marginal or unsatisfactory. And then you can say that we assign different employee to the different categories or we allocate, हम उनको फिक्स कर देते हैं कि आप इस कैटेगरी में हैं, आप इस कैटेगरी में हैं. एंड इवन समटाइम्स
the companies, the organization force us to categorize these employee into this category on a fixed numbers. आपको बता देते हैं कि भाई 10% एक्सीलेंट में आने चाहिए, 30% जो है वो गुड में हो, और 40% जो है वो सपोज एवरेज या सेटिस्फैक्ट्री में, इस तरीके से। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको एटलीस्ट 10% जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री में रखने हैं। तो जो भी रेटर्स होंगे, जो मैनेजर्स हैं जो इस तरह का अप्रेजल कर रहे हैं, वो जानबूझ के एम्प्लॉयज को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर, जैसे आप अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 59% स्टूडेंट एंड द फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट जिसको 60% मिला है। तो दोनों की परसेंटेज में 1% का ही डिफरेंस है, या समटाइम्स इवन एक नंबर का डिफरेंस होता है कि 59.5 या 59.9 है और किसी दूसरे का 60% है, बट उन दोनों की कैटेगरी डिफरेंस हो जाती है कि वो सेकंड डिवीजन है और एक एम्प्लॉय जो है वो या एक स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, जबकि उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे समझें कि 48% से सेकंड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो जो 48% पे है और जो 59% पे है, ये दोनों एक दूसरे को जो है वो यही बोल सकते हैं कि हम दोनों की सेकंड डिवीजन है, जबकि इन दोनों के अंदर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% का डिफरेंस है, बट स्टिल वो सेकेंड डिवीजन के अंदर ही काउंट होगा। तो वही चीज इसके अंदर है कि हमने कितनी परसेंट एम्प्लॉयज को कौन सी कैटेगरी में रखा, और उस कैटेगरी के अंदर उनका एज सच कोई आपस में डिफरेंशिएशन नहीं था, और इसको बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। दैट इज drawbacks of forced distribution. The first problem with this kind of distribution method is that this is forced. That means you need to categorize different employees or a minimum percentage of employee among different category. You are forced to distribute this kind of आपको करना पड़ेगा। कि जैसे आपको कंपनी ने बोला कि 10% को आपको एक्सीलेंट में रखना है, और सपोज 10% को आपको पुअर परफॉर्मेंस में रखना है, जिनको हम बिलो एवरेज बोल सकते हैं। तो ये आपको कई बार जानबूझ के करना पड़ सकता है, एंड सो मेनी टाइम एम्प्लॉयज और जो मैनेजर्स हैं वो इस चीज को अपोज भी करते हैं, और दे फेस प्रॉब्लम कि किस बेसिस पे हम किसी एम्प्लॉय को जो है वो गुड में रखें और किस कारण से हम किसी को एक्सेलेंट में रखें। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि समटाइम्स अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10-15 हैं या 20 हैं, वहां पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि 20 एम्प्लॉय में अगर आपको बोला जाए कि 4 या 5 कैटेगरी में उनको डिवाइड करो, तो पर कैटेगरी इतने कम पर्सन्स आते हैं, और फिर बेल शेप्ड है, तो आपको 20 में से ज्यादातर को तो आपको जो है वो करीब करीब 10 जनों को तो आपको सेटिस्फैक्ट्री या एवरेज में रखना है। तो जो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक या दो को एक्सीलेंट में डालना पड़ेगा, दो को आपने बोल दिया कि सपोज पुअर परफॉर्मेंस में डालना है।
तो समटाइम्स इस तरह का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एक तो वो छोटी कंपनी या जहाँ पे कम एम्प्लॉय है वहाँ पे थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता। सेकेंडली मैनेजर्स इसका अपोज करते हैं कि किस बेसिस पे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें कैटेगरी वाइज, और एक विद इन कैटेगरी भी जो है किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि 61% वाला भी फर्स्ट डिवीजन में काम काउंट होगा, और 75% और 80% वाला भी फर्स्ट डिवीजन में ही काउंट होगा। सो दिस इज ड्रॉबैक्स ऑफ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।